Hi everyone. In today's lecture, we are going to discuss about the migrant workers and their rights. इस लेक्चर के द्वारा हम जानेंगे कि कितने टाइप के माइग्रेंट्स होते हैं, क्या रीजंस होता है उनका माइग्रेट करने का, कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी जिन्होंने स्ट्रेंथिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बात करी, उनके लिए एम्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स रखे, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस थी. दीज ऑल थिंग्स गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो लेट्स बिगिन. There are more than 250 million migrants today, representing the highest number since World War II. And जो migrant का reason होता है, in order to have a seeking better jobs and access to better health care, running from famine and protecting themselves from some natural disasters, fleeing persecution and looking for political and religious freedom they do not enjoy at home. और two types के factors होते हैं, that are push factor and pull factor, which led migration. Push factor cause people to leave their places in order of social, political और economic protection नहीं मिलती तो उनको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है. और पुल फैक्टर will attract the people from different places. Some people migrate from one place to another in order to achieve better health care, better jobs and education. Two types के migration होते हैं, international and internal migration. जो इंटरनल माइग्रेशन होता है वो माइग्रेट विद इन द बाउंड्री होता है नेशनल बाउंड्रीज के, सच एज बिटवीन स्टेट, प्रोविंसेस, सिटीज और म्युनिसिपैलिटीज. एंड इंटरनल माइग्रेंट इन समवन हु मूव्स टू अ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी. इंटरनेशनल माइग्रेशन movement होता है from one country to another country. International migrants are further classified as legal immigrants, illegal immigrants and refugees. जो legal immigrants होते हैं they can move with the legal permission. और इलीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो विदाउट लीगल परमिशन मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंट्री. एंड रिफ्यूजीज आर दोज क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बाउंड्री टू escape persecution. International treaties निकाली गई in order to protect the human rights of all human beings irrespective of their citizenship. इसमें 6 मेन ह्यूमन राइट्स के ट्रीटीज अडॉप्टेड किए गए बाय यूएन फ्रॉम 1965 to 1989 in order to protect human rights of every human being, prevent violations and discrimination and many more. So कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्ट की गया 1965 में. दीज आर द all the treaties which has been adopted in order to protect the human rights and also protect the migrant rights. Together with 6 treaties, International Convention on the Protection of the Rights of all migrant workers and member of their family भी पार्ट है यूएन का. ये 7 कोर ह्यूमन राइट ट्रीटीज कंसिडर किया जाता है और इसको अडॉप्ट किया गया था 18 दिसंबर 1990 में और ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2003 में. दिस कन्वेंशन have a lot of number of rights that are applicable to migrant workers and members of their families जो protect करे, prevent करे और also protect the rights of every migrant workers. And in this 6 international human rights instrument listed above and specific ones, it is the first universal codification right of migrant workers or family के लिए जो convention निकाला गया. This is the first universal codification for the migrant workers rights. UN World Conference जो डील की गई थी in order to talk on the rights of migrant workers, these are as follows. International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Member of their Families. Vienna Declaration Program of Action में Part 2 Paragraph 33 to 35 talks on the conference urged that to guarantee the protection of the human rights of all migrant workers and their families. चैप्टर 10th प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट. इस कॉन्फ्रेंस में कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल अप्रोच की बात की गई थी जिससे कि डील कर सकें इंटरनेशनल माइग्रेशन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज, कोई भी राइट्स. वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टेट्स कमिटेड देमसेल्फ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंश्योर किया जाए माइग्रेंट वर्कर्स के बेनिफिट फ्रॉम द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय रेलेवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू टेक कॉन्क्रीट एंड इफेक्टिव मेजर जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन माइग्रेंट वर्कर्स का ना हो, इनकरेज किया जाए कि फुली इम्प्लीमेंटिंग की जाए इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की रिलेटिंग टू माइग्रेंट वर्कर्स.
बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो अडॉप्ट किया गया था फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन चैप्टर 5 में बोला गया है इस कॉन्फ्रेंस में कि vulnerability to violence and other forms of abuse of women migrants, including women migrant workers whose legal status in the host state depends on employers who may exploit their situation. So इन सब से related इन शॉर्ट ये बताया गया इन कॉन्फ्रेंस में कि माइग्रेंट वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनके इनकरेज करा जाए, उनके माइग्रेंट को प्रॉपरली उनको एक होस्ट स्टेट दी जाए जिससे कि वो अपने राइट्स इजीली और अच्छे से एक्सरसाइज कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, विदाउट एनी वायलेशन. International Convent on Migrant Workers. This convention protect both documents and undocumented workers. ये दोनों टाइप के माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है. डॉक्यूमेंट्स जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है ये सपोर्ट करने के लिए कि दे आर माइग्रेंट्स, और अनडॉक्यूमेंट वर्कर्स को भी. एंड फर्दरमोर स्टेट अंडरटेक टू इंश्योर दैट माइग्रेंट हुज राइट हैव बीन वायलेटेड may seek judicial remedy. So 29 September 2012 the convention had 46 state parties जिसके अंदर 93 आर्टिकल्स हैं इस कन्वेंशन में, और इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है which cover its scope and definition, non-discrimination, human rights of all migrant workers irrespective of their status, other rights of those who are documented or in a regular situation. जो पार्ट 1 है इस कन्वेंशन का उसमें कवर किया गया इसके स्कोप और डेफिनेशन को, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स. जो माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन दी गई है वो पार्ट 1 आर्टिकल 2 में दी गई है, और अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द कन्वेंशन पर्सन मैरिड टू माइग्रेंट वर्कर्स और हैविंग विद देम और रिलेशनशिप, दिस हैज बीन डिस्क्राइब इन द आर्टिकल 4. पार्ट 3 जो राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स पे और मेंबर्स ऑफ द फैमिली पे सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं. इस कन्वेंशन में माइग्रेंट वर्कर को इंक्लूड दिए गए हैं नंबर ऑफ राइट्स जो एड्रेस करते हैं उनके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नीड्स को, प्रोवाइडिंग एडिशनल गारंटी इन द लाइट ऑफ द पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑफ their family members, which includes the following: कि they have the right to shall be free to leave any state including their states of origin without restriction, ये आर्टिकल 8 में कहा गया है पैरा 1, और right to enter and remain in this state of origin ये आर्टिकल 8 में कहा गया है. right to life आर्टिकल 9 proclaimed for the migrants and prevention from subjection, forbidding of slavery or servitude article 11 में. These all are the rights which has been given to the migrant workers and members of their family in order to protect them. Family, home, correspondence or other communication article 14 says protection from arbitrary deprivation of property article 14, right to liberty and security of persons article 16. These all are the articles which are prescribed in order to protect the migrant workers and their members of families. जो कमिटी माइग्रेंट वर्कर की थी वो इसलिए स्टैब्लिश की गई थी टू मॉनिटर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स. और आर्टिकल 72 में बताया जाता है कि ये जो कन्वेंशन है ये प्रोवाइड करे सॉरी आर्टिकल 72 में इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो प्रोसेस मॉनिटर करता है वो आर्टिकल 72 के द्वारा इस कमेटी को दिया जाता है, जिसके अंदर 10 एक्सपर्ट्स इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द स्टेट पार्टीज, जिससे कि वो एक कैपेसिटी फॉर अ टर्म ऑफ 4 years के उसके द्वारा काम करें एंड गिव द गुड मॉनिटरिंग टूवर्ड्स द माइग्रेंट वर्कर्स. आर्टिकल 73 ऑफ द कन्वेंशन जिसमें रिपोर्ट किया जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि इम्प्लीमेंट करा जाए कन्वेंशन को विद इन द 1 years ऑफ इट्स एंट्री इनटू फोर्स फॉर द स्टेट कंसर्न एंड देयर आफ्टर एवरी 5 years. So UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers is the newest treaty body which held its first session in 1st March 2004 at Geneva. Special Rapporteur का भी इंक्लूड किया गया क्योंकि जो स्पेशल रिपोर्टर ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को क्रिएटेड की गई 1999 में बाय यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. इसमें रिक्वेस्ट किया गया कि एग्जामिन करना है, स्पेशल रिपोर्टर को एग्जामिन करना है कि कौन से वेज और मीन्स हैं जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया जाए एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन दी जाए ह्यूमन राइट्स की माइग्रेंट को, इंक्लूडिंग ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज फॉर द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स हु आर नॉन डॉक्यूमेंटेड और इन एन इरेगुलर सिचुएशन. 6 अगस्त 1999 में मिस गैब्रिएला पिज़ारो was appointed as special reporter और Commission on Human Rights extended her mandate for a further 3 years in 2002. और ये स्पेशल रिपोर्टर की रिक्वेस्ट और रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम माइग्रेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज कि कोई भी वायलेशन
जो ह्यूमन राइट्स का हो रहा है, या कोई इश्यूज है, रिकमेंडेशंस जिससे कि प्रिवेंट कर सकें वायलेशन एंड प्रोमोट कर सकें इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट की, उनको करा जाए। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट वुमेन को मेजर किया जाए। स्टॉप मल्टीपल violence should be there, not be practiced for the migrant workers. So this was all about in this lecture. Thank you so much for watching this video.